Savar, Sat Shri Akal. I am Sakshi, And I am Janvi. and we both, on behalf of Junior Zen, welcome you all on the 9th annual day of our school. मुझे लगता है यहाँ पे शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने आफ्टरनून में मॉर्निंग बोला है, बट पेरेंट्स हम जब भी किसी से दिन में पहली बार मिलते हैं हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं. सो गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, पेरेंट्स एंड आवर लवली क्यूटी पाइस. इट गिव मी एन इमेंस प्लेजर टू होस्ट टुडेज इवेंट एंड आई एम श्योर दैट आप सभी उतने ही एक्साइटेड होंगे लाइक मी एंड माई सिस्टर फॉर टुडेज स्पेशल इवेंट. But before we kickstart the event of the day, please allow us to thank you and welcome Nisha ma'am for organizing such a wonderful event. As a family of juniors, then I am sure that you all know her. But today we will give a brief description about our ma'am and of course my mama. She started her career in 2001 as a counselor, and today, after 2 decades, she is a successful businesswoman. She is an example that if we decide and do hard work, nothing can stop us to reach the goal. So, with a huge round of applause, let's welcome her. Hello. Thank you, beautifuls. Hello, everyone present here. Good afternoon. इतनी सारी स्ट्रेंथ है, आवाज ही नहीं आ रही है. एनर्जेटिक है, एक्साइटेड है. मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए आप लोगों का बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेने वाली हूँ, ना कोई बोरिंग सी स्पीच देने वाली हूँ आज आप लोगों को. इनफैक्ट आप लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ. आई एम गोइंग टू थैंक इवन माई द गॉड, आवर पेरेंट्स, टीचर्स, माई सपोर्टिंग स्टाफ and even our little juniors. Because of them, we have successfully completed the 10th year with 1400 happy faces. We are going to shift to a new premises, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है. बहुत जल्द आपको उसका inauguration का invitation भी मिल जाएगा. We would request you all to please be present on 6th of April, evening 5 to 7. Shubh Savar, Sat Shri Akal. I am Sakshi, And I am Janvi. and we both, on behalf of Junior Zen, welcome you all on the 9th annual day of our school. मुझे लगता है यहाँ पे शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने आफ्टरनून में मॉर्निंग बोला है, बट पेरेंट्स हम जब भी किसी से दिन में पहली बार मिलते हैं हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं. सो गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, पेरेंट्स एंड आवर लवली क्यूटी पाइस. इट गिव मी एन इमेंस प्लेजर टू होस्ट टुडेज इवेंट एंड आई एम श्योर दैट आप सभी उतने ही एक्साइटेड होंगे लाइक मी एंड माई सिस्टर फॉर टुडेज स्पेशल इवेंट. But before we kickstart the event of the day, please allow us to thank you and welcome Nisha ma'am for organizing such a wonderful event. As a family of juniors, then I am sure that you all know her. But today we will give a brief description about our ma'am and of course my mama. She started her career in 2001 as a counselor, and today, after 2 decades, she is a successful businesswoman. She is an example that if we decide and do hard work, nothing can stop us to reach the goal. So, with a huge round of applause, let's welcome her. Hello. Thank you, beautifuls. Hello, everyone present here. Good afternoon. इतनी सारी स्ट्रेंथ है, आवाज ही नहीं आ रही है. एनर्जेटिक है, एक्साइटेड है. मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए आप लोगों का बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेने वाली हूँ, ना कोई बोरिंग सी स्पीच देने वाली हूँ आज आप लोगों को. इनफैक्ट आप लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ. आई एम गोइंग टू थैंक इवन माई द गॉड, आवर पेरेंट्स, टीचर्स, माई सपोर्टिंग स्टाफ and even our little juniors. Because of them, we have successfully completed the 10th year with 1400 happy faces. We are going to shift to a new premises, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है. बहुत जल्द आपको उसका inauguration का invitation भी मिल जाएगा. We would request you all to please be present on 6th of April, evening 5 to 7. रहेंगे ना present? The classroom, the structures, the activity, everything has been designed in the new place according to the NEP 2020.
So it would be a great time we'll be spending over there. Without wasting your more time, I would now like to thank Sunny sir and Weber sir from Gills Academy for preparing the kids for this wonderful day. Parents, give them a huge round of applause. उनके बिना बच्चे इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते हैं. On behalf of Junior Sten and family, I respectfully invite our guest, today's guest, Mr. Shri Rohit Chaudhary, District Education Officer, Ahmedabad City. Sir, कुछ काम से busy हैं, गांधीनगर जाना पड़ा है immediately, but he'll be joining us soon. So again, we are having our second chief guest, Ms. Nitu Khimani, founder of 24K, the design culture. She is into architect and engineer. She has stayed several years in Singapore and Indonesia, and she was working with the Ministry of Education over there. Again, she is a Mahila Adhyaksh of Ganga Samagra, Gujarat State. Parents, with a huge round of applause, let's welcome Nitu ma'am on stage. किंजल दीदी. Now I would request Pawan Mishra, CEO of QCPL India and co-founder of Fame Times International Excellence Award, to please join us for the lamp lighting ceremony. Parents, give him a huge round of applause. Parents, request you all to please stand up for the lamp lighting ceremony. बप्पा विघ्न हरता सहस्र भक्त जन का तू एक करता धरता है द्वेष मुक्त मन वो तू जिसमें वास करता इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे हारे हे विघ्न हरता हे बप्पा विघ्न हरता शुभं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय
धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. Thank you so much, parents. Please be seated. Now, I would request Neetu ma'am, before starting this event, to share her experience about how important education is in today's world. Parents, please give her a huge round of applause. Good afternoon, Junior Den school kids, dear parents, teachers, and all the guests over here who are present right now. First, I will start with my introduction. My name is Neetu Khemani. I am into architectural and interior business, and several years I have spent in Singapore and Indonesia, and I was in education sector. And I saw a lot of difference between our education and their way of education. जिस तरह से हम लोग एजुकेशन देते हैं और वो लोग देते हैं, वो उसमें बहुत ही डिफरेंस है. जैसे मैंने देखा अभी निशा मैम ने बोला कि NP20, राइट, इट्स अ 2020 जो मोदी जी बोल रहे हैं, दैट इज़ अ स्किल बेस्ड एजुकेशन, कि बच्चों को स्किल के थ्रू माध्यम से पढ़ाया जाए, ना कि लिखाया जाए या रटाया जाए. एंड दैट इज़ अ बेस्ट एजुकेशन. बाहर भी यही है. बाहर भी जब मैं रहती थी बाहर, वहाँ पर मोदी जी ने बहुत सारे टीचर्स स्पेशली फ्रॉम इंडिया भेजे थे, एंड गुजरात से बहुत सारे टीचर्स थे टू लर्न हाउ टू टीच किड्स, टू लर्न द स्किल बेस्ड एजुकेशन, कि किस तरह का उनका कॉग्निटिव स्किल्स, मोटर स्किल्स को डेवलप किया जाए. अगर हम एक निजी तौर पे बात करें तो हम जब देखते हैं, जब बेबी बॉर्न होता है, धीरे धीरे वो सर उठाना सीखता है ना, वो स्टेबल होता है सर उठाने में. तब तक हम उसका केयर करते हैं कि उसका सर ना कहीं इधर उधर हो जाए. देन वो पलटना सीखता है. सो दोज आर दो स्किल्स जो हम नहीं जानते, जो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हैं. इसीलिए मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दे के समझा रही हूँ. तो वो एक स्किल है. फिर बच्चा अपने पाँव पे उठना, क्राउल करना, है ना, हाथ को वेव करना, क्लैप करना, फिंगर से पॉइंट आउट करना, दे स्टार्ट लर्निंग दोज थिंग्स, राइट. तो यही चीज़ जो बेसिक इनिशियल स्टेज होती है बच्चे की, जो अभी बच्चे यहाँ पर हैं जूनियर डेन में, जूनियर्स डेन में, वो बच्चे बहुत ही कोर हैं. जैसे हम बोलते हैं कि ये कोरा पेपर है, जो भी प्रिंट करो छपता जाएगा. दैट इज़ द ट्रू रियलिटी. ठीक है, आप एग्रेशन दिखाओगे, दे विल बाउंस बैक विद डबल एग्रेशन टू यू, है ना. आप प्यार दिखाओगे, दे विल बाउंस बैक विद डबल लव विथ यू. तो ये जो बाउंस बैक का सिस्टम है ना, ये अभी इनिशियल कोर स्टेज होता है बच्चों का. आप जो भी उनको सिखाओगे वो सीखेंगे. हम बच्चों को क्यों कहते हैं कि कैच कर, कैच इज़ अ मोटर स्किल्स, कि वो पकड़ना सीख रहा है, ग्रीप आ रही है उसके पास. इसी तरह जैसे हम जब पढ़ते थे तो हमारे स्कूल में स्टिचिंग कराया जाता था. मे बी यहाँ पर कई पेरेंट्स को पता होगा कि सिलाई, बुनाई, बटन लगाना, बटन बंद करना, शू का लेस टाई करना, वो सब एक स्किल है जो बच्चे को आना चाहिए, और वो मोटर स्किल से उसका ब्रेन का विकास होता है. पर अभी क्या कर रहे हैं, नहीं तू लेस मत बांध, मैं बांध देती हूँ, तू बेस खाली, ऐसा ही हम बोलते हैं. बट दैट इज़ रॉन्ग. इतना पैम्पर नहीं करना. हम उसका डेवलपमेंट रोक रहे हैं मेंटली एंड फिजिकली. उसको टाई करने दो लेस, उसको पता चलना चाहिए कैसे गांठ बनती है, नॉट कैसे बांधना है. ही विल लर्न. और नहीं सीख रहा तो सीख जाएगा, है ना. जैसे पी पॉड होता है, वो मटर होता है, मटर को छीलते हैं. जैसे मैंने बाहर देखा, ये सब एक्टिविटीज़ बच्चे बहुत करते हैं. तो मटर को छीलने का हम सोचते हैं इसमें क्या है. नो, वो बहुत एक इंटेलिजेंट गेम के रूप में टर्न हो सकता है, कि बच्चा पी पॉड खोल रहा है और उसमें से मटर के दाने निकाल रहा है, अलग उसको सेग्रीगेट कर रहा है, अलग अलग शेप में, साइज में. तो ये सब चीज़ें घर पे भी बच्चे कर सकते हैं, स्कूल में तो करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट दे कैन लर्न दोज थिंग्स फ्रॉम द किचन इटसेल्फ, क्योंकि घर में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों को सिखाने के लिए, और स्कूल्स तो है ही. बट ये जो मोटर स्किल्स है, ये हमारे आसपास बहुत सारी हैं, और जो आजकल मैं देख रही हूँ ये लुप्त हो रही हैं. तो और बच्चों को अंडरस्टैंड करना, ये जो इनका टाइम पीरियड है, इनका ब्रेन का जो मैक्सिमम डेवलपमेंट है फिजिकली एंड मेंटली, ये स्टेज है. तो इस स्टेज में आप जितना उनको सिखाओगे वो सीख सकते हैं.
उनको जितना समझाओगे, जितनी याददाश्त, कई पेरेंट्स को मैं बोलती हूँ, बोलते हुए सुनती हूँ कि मेरे बच्चे की याददाश्त बहुत कमज़ोर है, उसको कुछ याद ही नहीं रहता है, બધું ભૂલી જાય છે. इट इज़ नॉट लाइक दैट. उसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है. हाँ, वो जो कॉग्निटिव स्किल्स का डेवलपमेंट है उसकी कमी है, वो आ सकता है ना. उसको हम अगर फ्री हैंड छोड़ते हैं, अगर हम बच्चे को क्या बोलते हैं, ये मत कर, आऊ ना करिश, पर वी आर नॉट गिविंग हिम द ऑप्शन टू डू. उसके सामने ऑप्शन क्या है, क्या हमने कभी दिया? नहीं दिया. बट मैंने बाहर देखा वो लोग ऑप्शन के साथ देते हैं बच्चों को कि तू आ ना कर, पर आनी जगह तू आ कर, अने आना केम कर, वो भी उसको समझाया जाता है. और कई बार बच्चे को खुद ही क्वेश्चन का आंसर दिलवाने का काम करते हैं लोग कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखे, कि उसको एक प्रॉब्लम दे दिया है, जो भी लाइफ स्किल की बात कर रही हूँ, नॉट मैथमेटिकल प्रॉब्लम, लाइफ स्किल की बात कर रही हूँ, कि भाई उसमें से उसी को डिसीजन लेने दो, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर हिम और हर. तो इस तरह से अगर एजुकेशन जाएगा, और जैसे मैं देख रही हूँ कि इंडिया में भी अब स्किल बेस्ड एजुकेशन का दौर आ रहा है, कई स्कूलों में चालू हो गया है. इधर भी मेरी मीटिंग्स होती रहती है स्कूल के ट्रस्टीज़ और उनसे, कि कैसे डेवलपमेंट किया जाए बच्चों के स्कूल में, क्या ऐड ऑन किया जाए. जैसे टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी दोनों है, अच्छी भी है और बुरी भी है. अब हम अच्छे में इसको कैसे ले सकते हैं वो हमारे हाथ में. नॉट ओनली द स्कूल इज़ रिस्पॉन्सिबल, बट हमारा एज अ पेरेंट्स अवर एक मेजर रोल है कि टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को कितना कनेक्ट करना है. वो लिमिट हमें तय करनी होगी कि एक बच्चा कितना टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना चाहिए. टेक्नोलॉजी आना चाहिए, नो डाउट, एआई आ गया, राइट. तो टेक्नोलॉजी तो इम्पॉर्टेंट है, बट क्या वो टेक्नोलॉजी सही काम के लिए यूज़ कर रहा है? मैंने देखा था ट्रेन में, बीच में एक छोटा सा बच्चा था, वो मोबाइल में ही लगा हुआ था, पूरा 3 घंटे मैंने उसको मोबाइल में ही देखा. तो बच्चे का जो मोटर स्किल्स है वो सिर्फ स्क्रीन की उंगलियां यूं यूं करने में ही जा रही है. तो उसके ब्रेन ने उतना ही डेवलप किया है कि मुझे इधर ऐसा ही करना है, तो वो मोटर स्किल्स उसका डेवलप नहीं होगा आगे जाके. और जो अभी के जनरेशन है, इट्स अ वेरी पावरफुल एंड इंटेलिजेंट जनरेशन. आप इसको, जैसे हमारे टाइम में तो पेरेंट्स को कुछ पता भी नहीं था, है ना, हम कैसे बड़े हुए, कैसे पढ़े, नहीं पता था. बट हम इतना कंसर्न रखते हैं, इतने इंटेलिजेंट पेरेंट्स हैं कि हमें सब पता होता है कि डायरी में क्या लिखा है, आज क्या है, आज क्या है. बच्चे को टाइम दीजिए, उसको बांधिए मत, एजुकेशन के उसमें उसको फ्री बर्ड करिए, कि बांधना नहीं है और कंपेयर नहीं करना है. जहाँ आपने कंपेयर एजुकेशन में किया कि उसका इतना टका आया, इसका इतना परसेंटेज है, तेरा क्यों नहीं है, वाई डोंट यू, तू पढ़ता नहीं है, तेरी टीचर क्यों तेरे को ध्यान नहीं दे रही, ट्यूशन्स करवा देते हैं. बट स्किल बेस करवाइए. कोई अभी कितने भी हम भी देखते हैं, हमारे साथ के जो स्टूडेंट्स थे आज टॉपर थे, वो कहाँ है, मिडल रो वाले थे वो कहाँ है, लास्ट बेंचर्स कहाँ है, वी नो वेरी नाइसली, है ना. पढ़ना अच्छी बात है, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एजुकेशन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देता है, ना ही कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, पर अपना पर्सनल इकोनॉमिक ग्रोथ करता है ना. समाज में आपको एक स्तर पे बिठाता है, आप कनेक्टिविटी करते हैं समाज के साथ. तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. वो एक कोई भी देश का अगर मैक्सिमम एजुकेटेड कंट्री है, वो देश का विकास बहुत जल्दी होता है और बहुत आगे बढ़ता है वो देश, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर एजुकेटेड लोग हैं. इसलिए एजुकेशन तो पावरफुल टूल है ही अभी के उसमें, बट वो एजुकेशन को कैसे ले जाना है, दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट कोर थिंग, कि जैसे हमारा एजुकेशन जाना चाहिए. और अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो हो गई एजुकेशन की बात. अभी मैं गंगा समग्र में, जैसे निशा जी ने बोला कि मैं गंगा समग्र में महिला अध्यक्ष हूँ. ये एक संघ का प्रकल्प है. संघ के प्रकल्प में ये गंगा समग्र इसीलिए है, हम एनवायरनमेंट पे काम करते हैं. जितना भी वृक्षारोपण हो गया, एनवायरनमेंट में जैविक खेती हो गया, तो वॉट एवर ये जो पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में हम जन जागरण कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं कि आपकी मॉरल ड्यूटी है कि पर्यावरण को साफ सुथरा रखना, क्योंकि ये हमारे लिए ही है पर्यावरण. तो अभी तो जो हमने किया है वो टल नहीं सकता, बट नेक्स्ट जनरेशन को प्रिपेयर करना, दैट इज़ अवर मॉरल ड्यूटी टूवर्ड्स दिस गंगा समग्र. इसका नाम गंगा समग्र इसलिए रखा है कि जो भी स्टेट की नदियां हैं वो गंगा के समान है हमारे लिए, तो उसको पवित्र रखना हमारा काम है. चाहे वो नदी हो, साबरमती हो, नर्मदा हो, तापी हो, जहाँ कहीं की गुजरात की नदियाँ हैं हम वहाँ पर जाते हैं, सफाई अभियान चलाते हैं.
बहुत कुछ कर रहे हैं, स्कूल्स के साथ हम जुड़े हैं, निफ्ट में हमने प्रोजेक्ट किया, एनआईडी में प्रोजेक्ट किया बच्चों के साथ, तो बहुत सारी स्कूलों को हम कनेक्ट कर रहे हैं। अभी कल ही हमारा एक काशिंद्रा में प्रोग्राम है छोटे बच्चों के साथ, 50 बच्चे आने वाले हैं और उनके साथ हम प्लांटेशन करने वाले हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो द मॉरल ड्यूटी ऑफ द सोसाइटी, पेरेंट्स, टीचर्स एंड द स्कूल्स, के बच्चों को मोटिवेट करें पर्यावरण की तरफ। ये मत सोचिए छोटा है ये क्या करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, छोटे बच्चे भी काफ़ी कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो ये तो हो गया कि गंगा समग्र का बाइफर्केशन। अब नाउ जैसे निशा जी ने नया स्कूल, नया प्रीमाइसिस बनाया है, उसके बारे में कुछ बोलूँगी। उसका डिज़ाइन मैंने ही किया है एंड आई हैव शेयर्ड दोज डिज़ाइंस विथ निशा जी एंड मुझे लगता है कि वो डिज़ाइन का जब एप्लीकेशन होगा देन बच्चों को बहुत ही मज़ा आएगा। दैट इज़ वेरी वाइब्रेंट डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि ना फीकी दीवारें, फीका चीज़ें बच्चों को पसंद नहीं आती। दे लाइक सम वाइब्रेंट और चटपटा टाइप थिंग्स, राइट? तो वही कोशिश किया है डिज़ाइन में कि बच्चों को अच्छा लगे रोज़ स्कूल आना, वो रोए नहीं दरवाजे पे, बट खुशी खुशी स्कूल आए कि मेरा स्कूल है, मुझे वहाँ जाना है, आज मैं वहाँ जाके ही रहूँगा। चाहे पेरेंट्स बोले आज नहीं जाएगा, पर बच्चा बोले नहीं मैं जाऊँगा। So that type of design I have given to Nisha ji and hope आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। And thank you everyone and Nisha ji for calling me here and give me the privilege to talk with you. Thank you. मैम आपने जो लाइन बोली ना कि शायद आप ना बोल दें कि आज स्कूल नहीं जाना, तो ऐसा है ना, हमारे पेरेंट्स तो एकदम रेडी ही बैठे होते हैं बच्चों को हमेशा स्कूल भेजने के लिए। इनफैक्ट वैकेशन में भी ऐसा हो जाता है कि मैम इतना लंबा वैकेशन दे दिया आपने, उसको कट शॉर्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच मैम। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट पवन सर एंड नीतू मैम टू प्लीज टेक डाउन देयर सीट एंड एंजॉय द इवेंट। थैंक यू सो मच। पेरेंट्स आप एक्साइटेड हैं? रेडी करेंगे? Today's chief guest, Shri Rohit Chaudhary ji, District Education Officer, he is reaching here by 3 PM. So तब तक हम हमारा शो कंटिन्यू करते हैं, राइट? मुझे अगर आवाज़ ज़ोर से नहीं आएगी तो उस टाइम पे मैं शो बंद कर दूंगी, है ना? क्योंकि तालियों की आवाज़ तो बहुत ही कम है ना। खाना वाना खाकर आए? एग्जैक्टली अगर किसी की स्पीच में ये तालियां कम होंगी चलेगा, बट पेरेंट्स बच्चों की परफॉर्मेंस में तालियां कम नहीं होनी चाहिए। बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत मेहनत से आज के दिन के लिए रेडी हुए हैं, तो प्लीज़ इसके लिए मुझे बार बार आप लोगों को बोलना नहीं पड़े। आपके बच्चे हो, किसी के भी बच्चे हो, हमारे लिए तो जितने भी परफॉर्मेंस है वो सब हमारे ही बच्चे हैं, तो ज़ोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। आसमां से 2 गुना ऊंचा तेरा कद है, इतनी गहराई तेरी सागर की क्या हद है। बारिशों में भीगी चिड़िया जैसे कांपती रहती है, ऐसे दूर हाथों कैसे जीतेगा। अरे नाथ है तो बात बन जा, बादलों के पार उड़ जा, हार के बादल तेरे पाँव के नीचे बसेगा। पुष्पा 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 पुष्पराज, पुष्पा 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 पुष्पराज, पुष्पा 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 पुष्पराज, पुष्पा 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 पुष्पराज। काका असली तो है ना? कितनी सुन सुंदर पुष्पा, तेरे भाई की बेटी ने सोने की चेन ली है, कह रही है पैसे मेरे पुष्पा चाचा देंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? समझ गया बाबू, पैसे देके आता हूँ। पुष्पा, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर एम्ब्लेम।
पुष्पा, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? कौन है? नहीं, वाइल्ड फायर है। तो सभी पेरेंट्स को सलाम, नमस्ते। वैसे पुष्पा कभी झुकता नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे ले ये कौन आ गया है स्टेज पे, है ना? सुना नहीं? पुष्पा, पुष्पराज झुकेगा नहीं। ऑलराइट पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे मेरे आवाज से कम आपका आवाज है, मैं अकेला हूं, आप इतने सारे हैं। चलो रेस लगाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वाओ, अब लगा कि आप लोगों में एनर्जी है, चार्ज है। वेल डन। सो पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। आधा ही दूंगा, आधा बाद में दूंगा, चलेगा? ओके, सो माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। सॉरी, मजाक था। कैसा लगा आपको मेरा मजाक? थैंक यू सो मच। सबसे पहले माय नेम इज चंद्रेश खत्री। कौन हूं, क्या हूं, कहां से आया हूं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके पहले, जैसे आप लोगों ने आज मेरी एक गलती को माफ किया है, आपसे आशा करता हूं कि यहाँ पे जितने भी बच्चे परफॉर्म करेंगे, जितने भी टीचर्स स्किट्स करेंगी, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। मैं भी नहीं हूं। पुष्पा की अच्छी सी दाढ़ी थी और सॉरी यार बाल नहीं है मेरे, तो आप लोगों ने उसको नज़रअंदाज किया। तो मैं आप सबसे आशा करता हूं कि आप जितने भी आपके खुद के लिटिल जूनियर्स जो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, उसकी छोटी मोटी गलतियां माफ करेंगे और यहाँ पे बैठ के इस फंक्शन को एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसेंट। आपको सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं, मेरी एक्टिंग आपको लगी कैसी? अरे थैंक यू सो मच। जिसने अच्छी बोली है ना, वो सब मुझे बाद में मिलिएगा, सबको चॉकलेट दूंगा, क्योंकि मेरी एक्टिंग को कोई वैल्यू नहीं करता यार। मैं लोगों के पास काम मांगने जाता हूं, सर एक्टिंग करा लो, मना कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निशा मैम, जूनियर्स डैन की फैमिली और आप सबका कि उन्होंने मुझे एक चांस दिया है यहाँ पे एक्टिंग करने का। तो थैंक यू जूनियर्स डैन एंड फैमिली एंड निशा मैम ऑल्सो। तो अब जो समय है अपने पास, आप सबको पता है ना कि मार्च महीने में वैकेशंस भी आता है। उससे पहले क्या आता है? क्या आता है? अरे वेल डन। तो एग्जाम देता कौन है? बच्चे, करेक्ट। लेकिन आज मैं यहां पे आया हूं, जब जब ये पर्दा बंद होगा तब तक मेरा एंट्री होगा और मैं एग्जाम लूंगा आप सबसे। सन्नाटा छा गया रे। तो आप सबसे एग्जाम ऐसे लूंगा, मैं आऊंगा आपके बीच में और आपसे एक सवाल पूछूंगा। आपको उस सवाल का सिर्फ जवाब देना है। एक सवाल के कोई मार्क्स नहीं है। अनफॉर्चुनेटली निशा मैम ने मुझे ऐसा बोला कि सर आपको हम लोग पे नहीं कर पाएंगे। तो मैंने बोला यार तो मैम मैं चॉकलेट कैसे दूंगा? मैम ने बोला हम लोग बाद में अरेंज कर लेंगे। आई सेड ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का मेरा काम है आप लोगों से सवाल पूछना और आप सबको एंटरटेन करना। मैं रेडी हूं, आप लोग रेडी हैं? यहां वाले कम रेडी हैं, यहां वाले ज्यादा रेडी हैं। चलो देखते हैं। देखिए, कोई भी फंक्शन में किसी को अप्रिशिएट करने के लिए क्या होता है, क्या करते हैं अपने? परफेक्ट। दूसरी चीज क्या करते हैं? क्या करते हैं? तालियां भी बजाते हैं और सीटी भी बजाते हैं। ठीक है, तो पहले कंपटीशन करते हैं आप सबके बीच में। आप देखते हैं कि तालियां जीतती हैं या सीटियां जीतती हैं। ठीक है, तो पहले क्या बजवाया जाए ये बताइए। तालियां। कितने लोग तालियां बजा सकते हैं अच्छे से? स्टार्ट द क्लैपिंग। 1 2 3 स्टार्ट। वेल डन, वेल डन, शुक्रिया। अब बारी आती है किसकी? पुष्पराज। 1 2 3 स्टार्ट।
वाओ, वेल डन। क्या बात है, क्या बात है। पेरेंट्स, कर्टेन खुल रहा है, तालियां कम नहीं होनी चाहिए। हे बप्पा विघ्न हरता, सहस्र भक्त जन का तू एक करता धरता है, द्वेष मुक्त मन वो तू जिसमें वास करता, इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे हारे। हे विघ्न हरता, हे बप्पा विघ्न हरता, लग तेरा है माथे पे जिसके भी निखरता, कर्म की कसौटी पे है खरा उतरता, इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे हारे। रे बप्पा तू, रे बप्पा तू, रे बप्पा तू, रे बप्पा रे बप्पा रे बप्पा रे बप्पा रे। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री गणेश। गणपति बाप्पा। टीचर ऑफ जूनियर केजी। माँ, माँ बनना दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा है। आफ्टर अ लॉन्ग वेट, पेन, पेशेंस ऑफ 9 मंथ, जब एक डॉक्टर आपके बच्चे को आपके हाथ में देता है तो वो खुशी तो मैं बयान नहीं कर सकती, पर हाँ,
इतना ज़रूर कहूँगी कि यहाँ बैठी हुई हर माँ अभी अपना वही टाइम याद करती होगी। परिवार के लोग ये प्रे करते हैं कि लड़का होगा कि लड़की, पर बस एक माँ ये प्रे करती है कि हे भगवान, जो भी हो हेल्दी हो एंड सलामत हो। बच्चे माँ की पूरी दुनिया होते हैं, वो सबके बिना रह सकती है पर अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना ज़रूर कहूँगी, दुनिया की सारी खुशी एक तरफ, दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और माँ बनने की खुशी एक तरफ। तो हमारे प्यारे प्यारे छोटे बच्चे एक बड़ा प्यारा सा परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं, तो प्लीज़ पेरेंट्स तालियां कम ना हो। थैंक यू सो मच। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। रूठ जाना तेरा, मान जाना मेरा, ढूंढते तेरी हंसी मिल गई खुशी। राह हूँ मैं तेरी, रूह है तू मेरी, ढूंढते तेरे निशान मिल गई खुदी। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। तू जो मिला आसा हुई मुश्किल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। जिसके बिना जी पाना बहुत मुश्किल है। माँ बीमार हो तो दवा बन जाती है, टूटे दिल की दुआ बन जाती है। तू कैसे समझ लेती है मीलों दूर से मेरे दिल की बात, तू कैसे समझ लेती है मीलों दूर से मेरे दिल की बात। कैसे हर वक्त कहती है जा जी ले अच्छे हैं हालात।
क्यों तुझे मेरा हर गम मुझसे ज़्यादा सताता है? क्यों तुझे मेरा हर गम मुझसे ज़्यादा सताता है? क्यों तुझे मेरे हाथ का बना खाना सबसे ज़्यादा भाता है? तू मुझको पढ़ते पढ़ते खुद को खाली कर देती है क्या? तू लिखते लिखते मेरी किस्मत अपने कागजात जारी कर देती है क्या? क्यों तुझे मेरा हर फटा ख्वाब सीना है? क्यों तुझे मेरा हर फटा ख्वाब सीना है? क्यों तुझे तेरा हर सपना मेरे हक से जीना है? सही कहा ना पेरेंट्स? यहाँ बैठे हर पेरेंट्स ने कभी ना कभी ये ज़रूर फील किया होगा, और यहाँ बैठी हर माँ ने ये कभी ना कभी किया भी होगा, है ना? आवाज़ नहीं आ रही? पता है किसी को भी चोट लगती है ना, इनफैक्ट अभी भी हमें भी चोट लगती है ना, तो सबसे पहला शब्द मुंह से माँ ही निकलता है। किसी के भी मुंह से पापा, दादा, दादी, भाई, बहन कभी नहीं निकलता। मैं ऐसा नहीं कह रही कि इन सब रिश्तों की मायने कम है, पर बस एक माँ ही है जो पूरी दुनिया से हमें 9 महीने ज़्यादा प्यार करती है। मैं उन्हें कोई टाइटल तो नहीं दे सकती। फॉर मी शी इज़ एन ऑलराउंडर। वो मेरी पहली बेस्ट फ्रेंड है, मेरे सुख दुख की साथी भी है और मेरी बहन भी है। शी इज़ ऑल्सो अ ग्रेट कुक जो मेरे लिए यमी यमी सा खाना बनाती है और अपने हाथों से खिलाती भी है। यमी खाना आपको रेस्टोरेंट में भी मिल जाएगा, पर वो प्यार से खिलाने वाला हाथ वो कहीं नहीं मिलता। वो एक डॉक्टर भी है जो छोटे मोटे दर्द का इलाज अपने प्यार से कर देती है। पेरेंट्स, ये दुनिया कितनी मतलबी है ये आप भी जानते हैं। जिस दुनिया में एक स्माइल भी बिना मतलब के नहीं दी जाती, वहाँ बस एक माँ ही है जो बिना मतलब के निस्वार्थ भाव से हमसे प्यार करती है। तो हमारे नर्सरी के बच्चे आ रहे हैं अपनी प्यारी प्यारी माँ के लिए एक प्यारा सा डांस लेकर, तो ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। So I am once again welcoming you, all the parents of Juniors Den, to the 9th annual function of Juniors Den family. थोड़ी देर में बच्चे आएंगे, उससे पहले एक सवाल हो जाए, लेकिन आप सबसे एक प्रॉमिस चाहता हूं, कोई गूगल नहीं देखेगा, ठीक है? अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना है माँ की स्पीच, तो मैं आऊँगा ऑडियंस के पास। वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, बच्चे जब रोते हैं ना तो सबसे पहले माँ भी रोती है कि नहीं रोती है, राइट? तो अब मुझे ये बताइए, गूगल देखे बिना कि रोती हुई माँ को क्या कहेंगे? मैडम आप जवाब देंगे? मैडम ने मना कर दिया। किससे पूछूं? और सर आप रोती हुई माँ को क्या कहेंगे? नो सर, ये गलत जवाब है। नो आइडिया इज द नॉट राइट आंसर। मैम आप रोती हुई माँ को क्या कहेंगे? बेटा यू वांट टू ट्राई? अपनी मम्मी को रोते हुए देखा है तो अब अच्छी आवड़ू જોઈએ। कोई और ट्राई करना चाहेगा? रोती हुई माँ को क्या कहेंगे? अरे यार कोई तो बताओ। मैडम ने हाथ ऊपर किया है। क्या मैडम? छोटा बच्चा। नहीं मैम, मेरे पहले आंसर से आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे आंसर्स कैसे होंगे, आने वाले आंसर्स कैसे। सर 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 कहेंगे चुप हो जाओ। नहीं सर, सर एक बात बताइए सर, आप अगर आप ऐसा बोलेंगे तो वो मान लेंगे? गलत जवाब नहीं है। उनको क्या कहेंगे? नहीं, आपका आंसर सही है सर, लेकिन आंसर थोड़ा अटपटे में पूछना है इसलिए। हाँ बेटा, प्यारी माँ। हाँ, रोते हुए प्यारी लगती है, बाकी डांटती है ना तब तो डायन लगती है। सर आपका हो गया हो तो बच्चे बैठे हैं। मैडम जवाब दे दो इनको? ओके हाँ मैडम। अरे मैडम ने सही जवाब दिया है, मारुति। मारुति मिक्स करो, मारुति इज द राइट आंसर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। सर अभी म्यूजिक स्टार्ट करें? यस मैम कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। पेरेंट्स तालियां कम ना हो।
भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। ये गाना मेरी अम्मी के लिए। थोड़ी सी क्यूट है, थोड़ी सी करारी भी, थोड़ी सी कूल है, थोड़ी सी पेरेंट्स तालियां रुकनी नहीं चाहिए। जैसे गर्मी में ठंडा सा शरबत, खट्टा मीठा सा, जैसे सर्दी में चाहत का कोई कंबल मोटा सा। मेरी प्यारी अम्मी जो पेरेंट्स तालियां कम नहीं होनी चाहिए। मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है। पेरेंट्स तालियां रुकनी नहीं चाहिए। तेनू की दसो मेरे लिए क्या तू, मेरे लिए धड़कन, मेरे लिए साथ तू। तेनू की दसो मेरे लिए क्या तू। अगर आप लोग भी इसके साथ एंजॉय करेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा गाइस। कम ऑन, यस। हाय दिल तू जान तू, दर्द दे दवा तू, जब तक मैं जीना मेरे जीने दी वजह तू। दिल तू जान तू, दर्द दे दवा तू, जब तक मैं जीना मेरे जीने दी वजह तू। यशवी, दर्शल, निखिल, मिहिर, अर्श खान, प्राही, स्मिथ, युग, हीर and भौमिक, please come up on the backstage. Good afternoon, parents. My name is Saraswati Saragada, class teacher of toddler. पापा, पा कहने को तो एक छोटा सा वर्ड है, बट इसमें पूरी दुनिया समाती है। पापा और बच्चे का एक अलग ही रिश्ता होता है। वो कभी एक दूसरे को नहीं बताएंगे कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जब बच्चे को चोट लग जाती है तो माँ डर जाती है, बट पापा कभी जताते नहीं। इनफैक्ट बोलते हैं इतनी सी तो चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगी। दर्द तो उन्हें भी बहुत होता है, बट कभी वो जताते नहीं। ऑफिस से कितना थक कर आए हो, कितनी भी टेंशन हो, बट वो कभी अपने बच्चों के साथ खेलना कभी नहीं छोड़ते। यू नो पेरेंट्स, आई हैव नोटिस की माँ बच्चे को कितना भी डांट ले इतना फर्क नहीं पड़ता, बट पापा अगर जोर से बोल भी देते हैं तो आँख से आंसू आ जाते हैं। अ बॉन्ड ऑफ फादर एंड चाइल्ड प्रूव्स दैट किसी भी रिश्ते में ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, वो खुद ही समझ आ जाता है। एक शेर अर्ज करना चाहूँगी। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलता, जन्म कभी दो बार नहीं मिलता। मिलने को तो हज़ारों लोग मिलते हैं, लेकिन हज़ारों गलतियों को माफ़ करने वाला बाप नहीं मिलता। तो बाहर है हमारे टोडलर किड्स एक शानदार परफॉर्मेंस लेके, जिनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। बहुत ही प्यारा सा परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं। अकेले हम, अकेले तुम,
जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। Oh, I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान। But you love me, Daddy. तू मेरा दिल, तू मेरी जान। Oh, I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान। But you love me, Daddy. यूं तो है तू नन्हा सा, है मगर गुरु सबका। और इसी शरारत से दिल जिगर मैं हूँ सबका। कहने को है यूं तो हजार कोई, मगर तुझसा कहाँ। अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। Oh, I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान। But you love me, Daddy. तालियां रुक गई है। अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा। जोरदार तालियां सब पापाओं के लिए भी। कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, मेरा जग सारा हो तुम। मैंने तुम्हें जहाँ रखा कोई नहीं है वहाँ। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे लिए। Come on, guys! पेरेंट्स, गुड आफ्टरनून पेरेंट्स। ओके, अगला जो परफॉर्मेंस आने वाला है उसके लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगी। बड़ा भाग्यशाली है हर वो इंसान जिसके हिस्से ये सुख आया है। बड़ा भाग्यशाली है हर वो इंसान जिसके हिस्से ये सुख आया है। भाई की एक हंसी के लिए बहन ने दुखों को अपनाया है। कहते हैं दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता भाई बहन का होता है, जो कब लड़ पड़े और कब एक हो जाए पता ही नहीं चलता। ये रिश्ता ऐसा है जिसमें कोई बनावट नहीं होती। भाई बहन की लड़ाई भी एक तरीके का प्यार ही होता है। सही कहा जानवी। पेरेंट्स, कुछ मज़ेदार बात बताऊं जिसे सुनकर आप मुस्कुरा उठेंगे।
क्योंकि कभी ना कभी आपने आपके भाई या बहन के साथ ऐसा जरूर कुछ किया होगा। मम्मी का बताऊं? ये डायलॉग तो मानो हर भाई बहन का जन्मसिद्ध अधिकार है। मम्मी को सीक्रेट बता की धमकी देकर अपने सारे काम करवा लेना। सही कहा मैम, मेरा भाई तो हद ही करता है, सीक्रेट बताने की धमकी देकर होमवर्क भी करवा लेता है, और जब देख लेता है कि होमवर्क हो गया तो जाके मम्मी को भी सब कुछ बता देता है। अरे जानू, आप ये बोल रहे हो? एक बार है ना, मेरी छोटी सिस्टर को टीचर ने पनिशमेंट किया था, एक चैप्टर को 10 बार लिखना है। ओ, तो आपने लिख के दिया? नहीं रे, मैं क्यों लिखूं? मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था, पर हाँ थोड़ा दुख भी हो रहा था। तो मैंने उसे बोला, बेटा टीचर इतना ध्यान से थोड़ी देखने वाली है, 1-2 सेंटेंस छोड़ के लिख, जल्दी हो जाएगा। क्या दीदी ये सिखा रहे हो आप उसको? सुनो तो जानू, हमसे जो छोटे होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं। मतलब जब मैंने उसे कहा ना सेंटेंस छोड़ने को, तो वो मुझे क्या बोलती है पता है? दीदी आप सेंटेंस की बात कर रहे हो, मैं तो पूरा पैराग्राफ छोड़ के लिख रही हूँ। तो हमारे जूनियर के जो बच्चे आ रहे हैं इसी रिश्ते, नोकझोंक और लड़ाई को बताने, तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। हेलो सर, ऐसे आप पूरे पैसे लेके आधा काम नहीं चलेगा। मैडम, आपने पैसे दिए ही नहीं अभी तक, बोला काम होने के बाद पैसा मिलेगा। तो सर काम पूरा तो करिए तब देंगे ना, बराबर है ना पेरेंट्स? ओके मैम, थैंक यू मेरे सपोर्ट के लिए। देखिए पेरेंट्स, आज आपको हंसाने मैं वाला हूँ, तो आप उनका सपोर्ट मत करिएगा। मजा आ रहा है? दूसरा सवाल रेडी हैं आप लोग? एक पेरेंट्स ने मुझे अभी यहीं पे बोला कि सर दूसरा सवाल कब आएगा। मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैं सवाल लेके सीधा उनके पास ही जाऊंगा। मम्मी का सवाल हो गया, आप किसकी बारी आई? पापा की बारी आई है। तो आज का दूसरा सवाल है, अगर एक साउथ इंडियन बच्चा उसके पापा को सब्जी काटने के लिए बोलेगा तो उसे क्या बोलेगा? सर मैंने आपको ढूंढ लिया, मैं तमने शोधी लीधा साहेब, तो तुम्हारे जापो वर्षे हवे। अरे बोलो सर। सर को नहीं पता है। मैडम आपको पता है? मैडम को भी नहीं पता है। किसी को? अरे बहुत सारे हाथ है यार आज तो, वाह वेरी गुड मैडम। बोलो मैडम। नहीं मैम, काटना है उसको। अरे वेल डन, बहुत सुंदर, जोरदार तालियां हो जाए। वेरी गुड। जब तक तुम मेरे साथ हो मामा, मुझे मारने वाला कटप्पा इज द राइट आंसर। गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल आंसर। अब मुझे लगता है कि आप लोग मेरे सवालों को जान गए हैं। पेपर क्या कौन फोड़ी ना की पहला ये जवाब आप मैंने। मेरा डायरी किसी ने चुरा तो नहीं लिया ना? सर मेरा डायरी है ना वहां पे। नहीं सर आप मिले हुए नहीं है ना? बहुत अच्छा, चलो मैं बच गया। चलो बाय द टाइम जब कर्टन खुलते हैं आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूँ। मुझे लगता है कि पेपर फूट ही गया है, तो आंसर्स जल्दी आ जाएंगे। बस हो गया एक क्वेश्चन, बच्चे वेट कर रहे हैं। अब एक ही का बोला था सर। मिलेंगे पैसे पूरे मिलेंगे सर। आने दीजिए बच्चों की भी बारी। मैं बोला था ना आपको, हाँ टैलेंट की तो वैल्यू ही नहीं है। ओके आप अपना पेरेंट्स साथ में मेरे बोलिए कि बच्चों की भी वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, तो फिर थोड़ा सर को बोलिए कॉम्प्रोमाइज कर ले। ओके मैम, पर्दा खोलने दीजिए सर। श्योर मैम, थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सर।